امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلندتر صلوات صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والحیبۃ العسکری والغیبۃ الالہ القائم بامر اللہ. صلوات پڑھیے گا. سب سے پہلے تو جن کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ فاتحہ اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی اس فاتحہ میں شریک کر لیجیے گا. فاتحہ. بسم اللہ. عزیزان محترم، کچھ مطالب قرآن سے پیش کرنے کی کوشش کروں گی. قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر صالح، کہ جو بھی جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے اس کی اس نیکی کے بدلے میں اس کو 10 گنا ثواب عطا کرتا ہوں. یعنی اللہ نے قرآن میں ہم لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم اس دنیا میں ایک نیکی کرتے ہو تو تمہیں اس کا اجر 10 گنا ملا کرے گا. اگر ہم اس نیکی کے بارے میں پتہ کریں، حتیٰ کہ جیسے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یعنی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اب اگر ہم کسی بھی ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن پڑھاتے ہیں تو مطلب اللہ اس کو 10 گنا ثواب بڑھا دے گا. اگر ہم کوئی ایک دفعہ حج کرواتا ہے مستحب تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھا دے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی زیارات پہ جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ 10 گنا بڑھا دے گا. اگر زیارت کی بات کی جائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حسین کی زیارت جو کرے اس کو میرے یعنی رسول اللہ کے 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے. یہ وہ فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. خدا سے دعا کروں گی کہ خدا ہمیں اور آپ تمام بہنوں کو بار بار اس زیارت کا شرف نصیب کرے. عزیزان، یہ جو روایت ہے یہ بی بی ام سلمہ کی طرف سے وارد ہوئی ہے. یعنی پیغمبر یہاں کہتے ہیں کہ حسین کی زیارت کرنا یعنی کہ 70 حجوں کا ثواب، اور ساتھ میں وہ اللہ کے 10 گنا ثواب جو اللہ نے بیان کیا ہے ہم اس کو بھی ملا دیتے ہیں. لیکن در حقیقت جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم نیکی کرتے ہو، اگر تم حسنہ کرتے ہو تو یہ حسنہ ہے کیا؟ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ علی کی محبت حسنہ ہے، علی کی محبت نیکی ہے. کیسے نیکی ہے کہ جب علی کی محبت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو عزیزان محبت، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کس کے نام پر اس فرش عزا پر آئے ہیں. ہم علی ابن ابی طالب کے نام پر آئے ہیں. اور اگر کوئی محبت علی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے گناہ کم نہیں ہو رہے تو سمجھ جائیں کہ ہماری محبت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے. کیونکہ یہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ جب علی کی محبت جس میں ہو جاتی ہے تو وہ برائیاں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں. جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، تو ہماری برائیاں بھی راکھ کر دیتی ہیں. جیسے جیسے آپ کے اندر محبت علی بڑھے گی ویسے ویسے آپ کی برائیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ وہ محبت ہے کہ جو رسول اللہ نے ہمیں نیکی کے طور پہ متعارف کروائی ہے. تو جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ خدا نے کیا کہا کہ میں ایک نیکی کے بدلے میں کتنا ثواب دوں گا آپ کو؟ 10 گنا ثواب دوں گا. تو سب سے بڑی نیکی محبت علی ہے. اسی طرح کچھ روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین کا غم بھی ایک نیکی ہے. اگر ہم عبادت کی بات کریں تو ایک حدیث آپ لوگوں کی بھی نظروں سے گزری ہوگی کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے. سب سے پہلے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. دوسرا، کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. تیسرا، قرآن کو دیکھنا. پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا
तो सिर्फ और सिर्फ आप कुरान को देखती रहे, यहाँ आपकी इबादत शुमार होगी। और अपने वालिदैन के चेहरे पर निगाह करना इबादत है। अजीज़ान मोहतरम, मैंने मौला अली के हवाले से बात की। रसूल अल्लाह ये भी बयान करते हैं कि मैं और अली अपनी उम्मत के बाप हैं। तो जब वालिदैन का इतना अजर है कि वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो उम्मत के माँ बाप हो उनकी नाफरमानी करना हराम ना हो, उनके सामने ऊंचा बोलना हराम ना हो, उनके साथ जंग करना हराम ना हो। तो जैसे हम अपने वालिदैन के कदमों में अगर बैठ जाए तो ये रिवायत आती है कि ये फर्मा बरदार बच्चा है। इसी तरह उम्मत को चाहिए कि वो अपने बाप यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली के कदमों में बैठ जाए। सिर्फ और सिर्फ वही करे कि जो ये हस्तियां हमसे चाहती हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये एहतराम है कि जो हमें असहाबियों ने करके दिखाया, जनाब सलमान फारसी ने करके दिखाया, अबू ज़र गफ़ारी ने करके दिखाया, और बहुत से दीगर ऐसे असहाब हैं कि जिन्होंने हमें एहतराम करके दिखाया कि कैसे अपने उम्मत के बाप का एहतराम किया जाता है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अब यहाँ मैंने जो शुरू में बोला कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो हो सकता है कुछ लोगों के जहन में सवाल उभरा हो कि हम कैसे देखें मौला अली अलैहिस्सलाम को। यही चीज एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी कि या रसूलुल्लाह, आपने 12 दफा बताया कि अली अलैहिस्सलाम को शहादत होगी मस्जिद कूफा में, उनके बाद आने वाले लोग कैसे उनका चेहरा देख सकते हैं? तो यहाँ रसूल फरमाते हैं कि जिक्र अली इबादा, कि अली का जिक्र भी इबादत है। या तो अब यहाँ फिर वो सवाल करता है कि अगर कभी अली के जिक्र पे पाबंदी लग जाए, क्योंकि बहुत दफा ऐसा हुआ है, तो रसूल कहते हैं कि अली की मोहब्बत को अपने दिल में रखना भी इबादत है। अब आप सब यार, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है, और ये सब जानते हैं कि जिक्र करना एक फेल है जो सबके सामने नजर आता है, हमारे लब हिलते हैं, हमारी तस्बीहां चलती हैं, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा अमल है कि जिसको हम दिल की कैफियत का नाम देते हैं। अब अगर कितने भी मोमिन हो, उनके दिल में अगर अली की मोहब्बत है और वो चल रहा है, तो उसका वो चलना भी इबादत है। अगर वो औरत है जो किचन में काम कर रही है, तो उसका वो किचन में काम करना भी इबादत है। दिल में अली की मोहब्बत है, और अगर वो शख्स सो भी रहा है, तो उसका वो सोना भी इबादत है। अगर दिल में मोहब्बत है, तो वो दुनिया में किसी भी काम में अगर मगन है, उसका हर वो काम इबादत में शुमार होगा, क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अजीजान, आप सब जानते हैं कि जब हम कोई इबादत करते हैं तो हर इबादत की शराइत होती है। जैसे नमाज के लिए वजू की शर्त है, इसी तरह आप कितनी भी बगैर वजू के 100 रकअत नमाजी पढ़ ले, वो नमाज कबूल ही नहीं होगी, वो नमाज ही नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ कहलाएगा कि आप उठ और बैठ रहे थे। इसी तरह अगर कोई शख्स चोरी करके हज करने चले जाए, चाहे वो कितने ही चोरी के माल से, किसी और के माल से जिसकी इजाजत ना हो, वो हज करे, ज़ियारत करे, उसकी ये इबादत कबूल नहीं होगी। यानी हर इबादत के लिए कोई ना कोई शराइत है, लेकिन मौला अली से मोहब्बत की ये इंतहा है कि कोई शर्त नहीं है, क्योंकि ना वजू की जरूरत है, ना ही किसी तरह के पैसे वगैरह की जरूरत है, बस आपको दिल में मोहब्बत रखनी है। तो हम जब इतने यानी मोहब्बत अली को जब हम दिल में रखते हैं और हम इतने बड़े आबिद कहलाते हैं, तो सोचें मेरे उस अमीर की इबादत का क्या हाल होगा। रसूल अल्लाह ने क्या कहा, ज़रबतु अली मिन यौमिल खंदक अफज़ल मिन इबादत सक़लैन। यानी इबादत की बात नहीं हो रही, सिर्फ बात हो रही है कि अली की एक ज़रबत। तो अज़ीज़ान, यहाँ दिमाग में रखिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने 83 जंगें लड़ी हैं, 83 जंगें मौला अली अलैहिस्सलाम ने लड़ी हैं, और उन तमाम जंगों में से सिर्फ एक ज़रबत की बात की कि एक ज़रबत अली की सकलैन की इबादत से बेहतर है। अब ये सकलैन कौन है? जिनों और इंसानों को मिलाकर, यानी इस दुनिया में जितने भी जिन हैं, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उन सब की इबादतों को एक तरफ रख दो, और अली की जो ज़रबत है वो तो उन तमाम से अफजल तरीन इबादत है। तो ये मौला अली की ज़रबत है। अब ये ज़रबत कहाँ की? ये जिहाद में की, और हमारे फुरूए दीन में ये जिहाद किस नंबर पर आता है? ये 6ठे नंबर पर आता है। अगर थोड़ा सा और पीछे जाए फुरूए दीन में, आप सब जानती होगी कि पहला नंबर नमाज का है, दूसरा रोजा, तीसरा हज,
चौथा ज़कात, पांचवा खुम्स, फिर छठा जिहाद है। लेकिन अगर हम अली की ज़कात की बात करें तो जब अली ने ज़कात दी है तो खुदा ने एक आयत नाजिल की कि इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, यानी अल्लाह ने उसकी ज़कात देने पे कुरान की आयत नाजिल कर दी कि उन यारी 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरह। ये वो जानशीन पैगंबर है कि जिसको ज़कात के बदले खुदा ने विलायत अता कर दी, और जब बिस्तर रसूल पे सोया है तो खुदा ने अपनी मर्जी अता कर दी। यानी अब जिस को चाहिए कि वो कहे कि अल्लाह मुझसे राजी हो या रजी अल्लाह ताला अन्हा बनना है, तो वो सबसे पहले मेरे अली को राजी करे, तब जाके उससे मेरा अल्लाह राजी होगा। ये है वो मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम। अजीज़ान मोहतरम, हसना के बारे में छठे इमाम से रिवायत है कि कुरान में जहाँ जहाँ पर भी हसना आया है उससे मुराद हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ताकि जो मुश्किलात हैं वो तमाम करती हूँ। हबीब खुदा फरमाते हैं कि मेरे नवासे हुसैन का जो गम है वो भी करना नेकी है। इमाम हुसैन के गम में रोना भी नेकी है। आप सब जानते हैं जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि बीबी बहुत ज़ख्मी है, बीबी इतनी ज़ख्मी है, अगर हम अपने बीबी के ज़ख्मों पे मरहम रखना चाहते हैं तो अपने हुसैन पे आंसू बहाइए, बीबी को तस्कीन मिलती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जिस मरहुमा की मजलिस है सब उसके घर के खानवादे के पास आएंगे, उनसे अफसोस करेंगे, लेकिन जब मेरा हुसैन को शहीद किया गया है अजीज़ान, वो आम मौत नहीं थी, नेज़ों से मारा है मेरे हुसैन को, तीरों से मारा है, इधर सब आते हैं गले लगते हैं खानवादे के, उनको अफसोस करते हैं, लेकिन वहां क्या किया गया था? अरे हुसैन के बेटे के गले में तोक पहना दी गई थी, अरे रस्सियां डाल दी गई थी। बहन ज़ैनब अपने भाई के जनाजे में गई है तो उनकी चादरें छीन ली गई। एक नन्ही सी बच्ची है, छोटी बच्ची को तो सब प्यार करते हैं, लेकिन शाम गरीबा में उस बच्ची को तमाचे मारे गए, इतने तमाचे कि वो बेचारी बेहोश हो गई, और जब होश से उठती है तो अपनी ज़ैनब से कहती है, फूफी ज़ैनब मेरी चादर कहाँ है? अरे ज़ैनब खुद कह रही है, अरे भतीजी मेरी खुद की हालत ही है कि चादर छिन गई है। अजीज़ा, जब मरने वाले के यहाँ कोई बेहोश हो जाता है तो उसको पानी ला कर दिया जाता है, लेकिन हाय शाम कि जब कोई बेहोश हुआ उन बच्चों को थप्पड़ मार मार के उठाया गया है। अजीज़ा, तसव्वुर करें जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई थी, इमाम हुसैन ने उनकी बेटी को मंगवाया कि अरे बच्ची को लाया जाए, उसके सर पे शफकत का हाथ रखा है। बच्ची कहने लगी, बाबू जान मेरे बाबा खैरियत से है, ये हाथ तो लग रहा है कि मैं यतीम हो चुकी हूँ। बस इमाम हुसैन ने कहा, नहीं बेटा अपने को यतीम न समझो, तुम्हारा मामू जिंदा है। एक संदूक मंगवाया गया, उसके कानों में बालियां डाली, कहा बेटा कलीद है, अपने आप को यतीम न समझना। एक रावी बयान करता है उसी खैमे के कोने में एक 4 साल की नन्ही बच्ची खड़ी थी, उसको समझ में आ गया कि जब कोई यतीम होता है तो सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है। अरे बस शाम गरीबा आई, वो बच्ची यतीम तो हो गई, अब इंतजार में है कि कोई आएगा मेरे सर पे हाथ रखेगा। अरे इतने में शिब्र नहीं आया, सर के बालों में हाथ डाला, बालियां छीन ली, बस वो रात की तरफ रुख किया, चाचा अब्बास मेरे कानों से खून बह रहा है, मुझे तमाचे मारे हैं। अरे वो नन्हे सी बच्ची रोती रोती मक्तल में उतरी, कहती है बाबा मुझे नींद नहीं आती, मेरे कानों की बालियां छीन ली, अरे मुझे तमाचे मारे। इतने में आवाज आई उस कटे हुए सर से, लैया या बुनैया, ए मेरी लखते जिगर मेरे पास आ जा। अरे जब खेमों में आग लगी तो ज़ैनब बच्चों को समेट रही है, इतने में देखा सकीना नहीं
रोते